Namaste Facebook. Hello everyone. This is Shilpa Mittal. I'm a nutritionist and I have done my masters in food science and nutrition, and I have around 20 years of experience. I'm also a certified diabetes educator and an onco nutritionist, and currently I'm pursuing a course in supplement nutrition and holistic nutrition. So I'm associated with Wellshore India, which is a corporate wellness company since the last 3-4 years, and we have been doing a lot of corporate camps in terms of educating people about eating healthy. So I am on their panel as a nutritionist, and I thank Wellshore India and Religare Health for giving me this opportunity today to come and speak about how would we stay healthy in these times and also post COVID. So friends, let me begin with we are all aware that with this pandemic hovering around us, survival of the fittest is reality, isn't it? Aren't you agreeing with me? Now how would we decide that who is that fittest? That will depend on his or her immunity, how good his or her immunity is, how can they fight back infections or the viruses and the bacteria, isn't it? Now how, on what factors does that depend on whether the immunity is good or bad? So that's very simple equation. That depends on what is the raw material you are giving, or you are letting it, you're feeding it. So whatever you feed in, accordingly the immunity will be either good or it will be bad. Now friends, I'm going to ask you a simple thing. What is luxury for you? You can just type in the comment. Is it a bungalow near a beachside, or a vacation to a foreign destination, whatever it is? Just quickly type in. Let me just know what is luxury for you all. We all want to live luxurious life, right? So let us understand first what is luxury. What all we place. Okay. अनीश हैज़ आस्क्ड मी, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा. अनीश, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों यूज़ करूँगी. मैं अभी आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके लिए लग्जरी क्या है. आप लग्जरी इन द सेंस जिसे हम जैसे हमें लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया तो मैं ये करूँगी या ये करूँगा, तो वो क्या है. सो जस्ट मे बी यू कैन कमेंट बिलो कि क्या है. I'm not getting any comments. It is going to be a little interactive session, so friends, you can just type in. There is nothing wrong or right. We all have our wishes and desires, so let's just take it. You will be able to understand better if you keep interacting. Okay, so let me just tell you what is the biggest luxury in today's time. Isn't it health? वुड यू ऑल एग्री विथ मी? क्या आपको लगता नहीं है कि हेल्थ सबसे बड़ी ज़रूरत है, एटलीस्ट अभी के टाइम पे, जहाँ हम सबको और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यस, हम बीमार नहीं हो जाएं, हम अच्छी सेहत में रहे, राइट? तो हेल्थ इज़ वेल्थ एंड वी ऑल एग्री विथ इट. बट इज़ इट सो ईजी? क्या ये चीज़ हेल्थ इज़ द बिगेस्ट लग्जरी, हम एग्री तो कर रहे हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, सो इज़ इट दैट ईजी जैसे लगता है? कैन एवरीबडी अफोर्ड इट? हम सबकी हेल्थ अच्छी रहती है या किसी की नहीं भी रहती है? सो दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ टेल्स अस दैट येस, इट मैटर्स दैट व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, आप कौन सी लाइफस्टाइल जी रहे हो, कब सो रहे हो, क्या खा रहे हो, किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो. सो इफ़ यू आर हेल्दी and do not fall ill, you will definitely be mentally fit too. अगर सोचिए ऐसे हो कि आप हर थोड़े थोड़े दिन में बीमार हो रहे हो, मे बी हॉस्पिटल नहीं जाना है, थोड़ा सा सिर दर्द है, पेट दर्द है या पैर भी दुख रहे हैं, तो आप मेंटली उतने फिट रहते हो, बार बार हमारा ध्यान उसी तकलीफ पे जाता है कि आज मेरा पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, राइट? सो इवन मेंटली वी आर अनफिट इफ देर इज इवन अ स्मॉल इशू विथ आवर बॉडी.
सो येस, हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ. अभी पहले मैं कुछ पॉइंट्स दोहराती हूँ कि हमने इस पैंडमिक जो चल रहा है, पैंडमिक ने हमें क्या क्या सिखाया है और हम इसे कैसे आगे लेके जा सकते हैं. तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं. जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि हेल्थ इज़ द बिगेस्ट लग्जरी, हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है. पैंडमिक ने हमें ये भी सिखाया डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स. ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रांडेड ही कपड़े पहने, हम ब्रांडेड ही ब्रांड का कोई सामान खरीदे. जब सामान या रिसोर्सेज भी हमें मिल नहीं रहे थे, हम कुछ भी खरीदने रेडी थे. लोकल पोहा वॉज ऑल्सो फाइन, वी वर नॉट गोइंग इन फॉर ब्रांडेड. सो दिस हैज़ टॉट अस कि नीड्स हमारे बहुत कम हैं. सिर्फ खाना चाहिए, हमें रहने के लिए शेल्टर चाहिए और पहनने के लिए नॉर्मल क्लोथ्स चाहिए, नहीं तो हमारी डिमांड्स आसमान छूती थी. So that is one thing. Family is important. Each one of us are with family. हम सब अपनी फैमिलीज के साथ है और हमने न्यूज़पेपर्स और टीवी में देखा जो लोग अपने फैमिली से दूर थे वो किस तरीके से अपनी फैमिली के पास पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे थे. Also, few studies have found that this period has, many people have made a lot of positive changes. Like many a times I have seen my clients who say कि मैम फ्रूट्स तो मैं खा ही नहीं सकता या खा ही नहीं सकती बिकॉज ऑफिस में मुझे टाइम नहीं मिलता और घर पे बहुत कम टाइम रहता हूँ. सो दे हैव डेवलप्ड अ फ्यू गुड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, ईटिंग फ्रूट्स, एक्सरसाइजेस. सो कहीं हमारा रूटीन भी बहुत अच्छा हुआ है. उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अपने टैलेंट्स, अपने हॉबीज़, इन सब को भी निखारा है या उन्हें अपने टैलेंट्स, हॉबीज़ के बारे में भी पता चला है. सो दिस पीरियड इज़ हेल्पिंग अस एंड इट इज़ हेल्पिंग अस रिफाइन आवर स्किल्स, नो सो मेनी थिंग्स जो हम नहीं जानते थे. सो ऑल्सो अबाउट द क्लीनलीनेस. क्या हम पहले कभी इतनी बार हाथ धोते थे बाहर से आके? कभी हम शॉवर लेते थे एक्सेप्ट फॉर समर्स? नहीं. सो वी हैव ऑल्सो लर्नड अ लॉट ऑफ क्लीनलीनेस. एंड येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिस्पेक्ट फॉर कम्युनिटी हेल्पर्स. बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो पीरियड है जब हमें हाथ से काम करना पड़ रहा है, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट for them also. So we have learned a lot of positive things. Now let us take it ahead and let me all tell you how can we maintain this. So एक और चीज़ मैं पूछूंगी. Do you all agree you are what you eat? Means आप जो खाते हो आपकी बॉडी उसी से बनती है. आप लोग इसमें मेरे साथ हो? अगर हो तो मुझे एक थम्स अप दिखा दीजिए या यस टाइप कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि यू ऑल आर एग्रीइंग विथ मी, बिकॉज ओनली देन आई कैन, तो ही मैं आगे जा सकती हूँ सेशन में. यस सनी, गुड इवनिंग. थैंक यू रणवीर फॉर एग्रीइंग विथ मी. ओके, सो यस, यू आर वॉट यू ईट. तो अगर हम हेल्दी खाना डालेंगे हमारे सिस्टम में तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर हम जंक डालेंगे तो हमारी बॉडी जंक रहेगी. राइट, यू ऑल एग्री. लेकिन कभी आपने ऐसे देखा है या कभी ऐसे होता है अरे ये तो कितना कुछ भी रॉन्ग फूड खा रहा है या खा रही है मगर इसे तो कुछ भी नहीं होता, क्यों ऐसे? तो आपको ऐसे लगता है कि वो उसे अभी कुछ नहीं है तो वो अंदर से हेल्दी है? हाँ या ना? हो सकता है, लेकिन कुछ सालों बाद इसका इफेक्ट ज़रूर दिखाई देगा. और इन शॉर्ट मैं ये कहती हूँ कि ऐसे लोग, दे आर नॉट लिविंग, दे आर जस्ट सर्वाइविंग. जीने के लिए जी रहे हैं. तो चॉइस इज इन आवर हैंड्स. व्हाट डू वी वांट टू डू? हमें सिर्फ जीने के लिए जीना है या वी वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ? येस, डेफिनेटली वी ऑल वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ. वी डोंट वांट टू जस्ट सर्वाइव, राइट? सो अब हम जानेंगे कि हाउ कैन वी लिव अ हेल्दी लाइफ. सो हेल्थ डिपेंड्स बेसिकली जस्ट ऑन 3 थिंग्स. बहुत सिंपल इक्वेशन है. इफ़ यू गेट दिस राइट, अगर आपको ये समझ में आ गया तो लाइफ बहुत सॉर्टेड रहेगी, बिलीव मी. हेल्थ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ईट. आप क्या खा रहे हो, आपका एनर्जी आउटपुट मीन्स आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, कितने एक्टिव हो, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट.
अभी क्या खा रहे हैं एंड क्या आउटपुट है बहुत इजी है समझना. बट व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR, जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं. तो ये मैं हिंदी में समझाऊंगी ताकि आप सब लोग समझ जाएं. सो इट इज़ लाइक जैसे आप सो रहे हो या बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, देन ऑल्सो द बॉडी इज़ वर्किंग फ्रॉम इनसाइड. जैसे हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, बॉडी के मशीन के अंदर के सारे काम चल रहे हैं. तो उसको करने के लिए भी बॉडी को कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट. एंड ईच इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट रेट. मेरी रेट आपके साथ नहीं मैच होगी, आपकी रेट किसी और के साथ नहीं मैच होगी. तो दिस वे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट रेट, एंड इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक मसल मास कितना अच्छा है, बॉडी में फैट कैसे है, आपका जेनेटिक्स कैसे है, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, क्या खाते हैं. ये सब फैक्टर्स पे आपका जो BMR है, मेटाबॉलिज्म है, वो डिपेंड करता है. जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, कई बार ऐसे होता है हम कुछ लोगों के अक्रॉस आते हैं, वो 40, 50 या 60 के हो, और हमें बाद में लगता है अरे ये तो लगता ही नहीं है, ये लगती नहीं है कि 50 ईयर्स की है, क्या राज है इसका. होता है ना बहुत सी बार. हम अगर दो इंडिविजुअल्स को कंपेयर करें, एक तो 50 से भी ज़्यादा कभी कभी एज में लगते हैं और एक 50 होते हुए भी 35-40 लगते हैं. तो ऐसे क्यों होता है? सो पॉसिबली दे आर वर्किंग फॉर इट. उनका मसल मास अच्छा है और उनका मेटाबॉलिज्म भी कहीं उन्हें साथ दे रहा है. सो दिस इज हाउ इट डिफर्स. नाउ आर यू ऑल इंटरेस्टेड इन नोइंग आपका बॉडी टाइप कैसे है? मेटाबॉलिज्म हम BCA मशीन होती है उससे मेजर करते हैं, बट ये बॉडी टाइप विल गिव यू अ जनरल आइडिया एज टू हाउ व्हाट इज योर बॉडी टाइप इन फैक्ट. तो बहुत सिंपल चीज़ें हम करते हैं यहाँ पे. तो लेफ्ट हैंड लीजिए इस तरीके से, और जो राइट हैंड है उसका थंब और मिडल फिंगर इसको अपने रिस्ट के तरफ ऐसे कवर कर लीजिए. आप देख रहे हैं जैसे मैंने किया है. ओके, तो आपको देखिए इस तरीके से. तो अगर ये जो आपका थंब एंड मिडल फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर ये यूज करना है, इसको आप ऐसे रैप कर लीजिए रिस्ट के अराउंड. सो इफ दिस इज ओवरलैपिंग, मतलब थंब के ऊपर मिडल फिंगर आ रही है, तो आप एक्टोमॉर्फ हो. एक्टोमॉर्फ मीन्स यू विल नॉट गेन वेट इजीली. आप हमेशा थोड़े थिनर साइड रहोगे और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहेगा. एंड इफ योर थंब एंड द मिडल फिंगर अगर वो सिर्फ ऐसे टच हो रहे हैं, देन यू फॉल इनटू मीसोमॉर्फ. मीसोमॉर्फ मीन्स व्हाट? मीसोमॉर्फ्स आर दोज विच हैव अच्छा एथलेटिक बिल्ड होता है, ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, दे गेन वेट एंड लूज वेट ऑल्सो ईजिली. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एंडोमॉर्फ. अगर आपकी ये दोनों जो फिंगर है इससे टच होना या मिलने में दिक्कत जा रही है, गैप है, तो देन यू फॉल इनटू एंडोमॉर्फ. एंडोमॉर्फ में थोड़ा स्लो होता है मेटाबॉलिज्म, इनके लिए वेट लॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड दे हैव मोस्टली फैट एक्यूमुलेटेड अराउंड देयर सेंट्रल, एंड देयर लोअर बॉडी में ज़्यादा फैट होता है एंड स्टमक के आसपास. So these are basically broad classifications of 3 body types. Now you can be either one of them or you can be a combination of 2 body types also. So this again depends, and we also do a body fat analysis. जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ मशीन होती है जिससे हम आपका body composition देखते हैं. तो ये सब basis पे then we decide, and accordingly then we give you a customized diet plan. Now I would want to mention one thing. Each one of us are different and there are different diets for different people. बहुत सी बार मैंने देखा है, अगर आपको रिजल्ट आया, आपका सपोज वेट लॉस हुआ और किसी ने आपको पूछा कि कैसे हुआ, तो हम वही पेपर उठा के दूसरे को दे देते हैं. बट ये जानना ज़रूरी है कि जैसे हमारे कपड़े में हम ही फिट हो सकते हैं, वैसे डाइट्स आर ऑल्सो टेलर मेड, दे आर ऑल्सो कस्टमाइज. सो आपका रूटीन, आपकी पसंद, आपका दिनचर्या विल बी डिफरेंट, एंड अकॉर्डिंगली आप जिसे दे रहे हैं उसकी भी
उसका भी अलग होगा. वी ऑल्सो डू अ ब्लड प्रोफाइल टेस्ट. So do not give your diet plans, or each and every individual has a different diet for themselves. हो सकता है कि केला suits you for your acidity, but it may cause weight gain or acidity in some other individuals. So that knowing that bio individuality is very very essential. मुझे बताइए, आप लोगों में से कितने लोग साल में एक बार पूरा ब्लड प्रोफाइल या बॉडी चेकअप या हेल्थ चेकअप कराते हैं? तो गिव मी अ थम्स अप या नीचे यस लिख के यस टाइप कीजिए. कितने लोग करते हैं? आज मेरे लाइव में देखती हूँ मैं कितने लोग हेल्थ कॉन्शियस है. हमारे घर में बहुत सारी गैजेट्स होते हैं, टीवी है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, उन सब का हम AMC करवाते हैं, दैट इज एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. बट HMC हमने कभी हमारे हेल्थ के लिए किया है, दैट इज हेल्थ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. वी आर वेरी केयरफुल कि फ्रिज खराब नहीं हो जाए, टीवी खराब नहीं हो जाए, AC बराबर चलता रहे. बट आर वी सो केयरफुल? सो आई हैव गॉट 2-3 येस, and I'm very happy for you all कि at least you all take care and you all get your blood profiles done every year. So that's a great thing. Now, so what does being healthy means? It means you need to eat right. Now, if I tell you eat right, that's a broad term. So what all things come under that? Eat right means, again, just 3 simple things. What to eat, क्या खाना है, which is very simple. Processed packaged foods कम खाना है. When to eat is, do not keep long gaps. Eat at least every 2 to 3 hours. And how to eat is overcooked food नहीं खाना है. मैंने देखा है बहुत सी बार लोग सब्जियां पकाते हैं तो लिटरली मैश कर देते हैं, जहाँ उसका सारा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स बिल्कुल भी नहीं रहता. सो जस्ट कुक टिल इट्स डन. सो प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाना है, ज़्यादा गैप्स नहीं रखने हैं. And whenever you cook foods, like definitely cooking is needed, but do not overcook food. So this is what you need to remember. So in short, do not follow a diet which has an expiry date. डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आप फॉलो करो वो आप थ्रू आउट द लाइफ फॉलो कर सकते हो. ऐसे नहीं है ऑन एंड ऑफ जाना डाइट के. दैट इज नॉट कॉल्ड बीइंग ऑन अ हेल्दी डाइट. अब हम बात करते हैं हेल्दी प्लेट की. जब हम खाना खाते हैं हमारी प्लेट में क्या होता है? यूजुअल डे टू डे लाइफ में मैं पूछ रही हूँ, लंच हो या डिनर, एक दाल या कर्ड होगा, एक करी बेस्ड चीज़ होगी, एक सब्जी होगी, रोटी होगा और राइस होगा, राइट? कोई भी क्यूसीन होने दो. साउथ इंडियन अगर है कोई तो दे विल हैव मोर ऑफ राइस. नॉर्थ इंडियन विल हैव पराठाज एंड रोटीज अकॉर्डिंगली. एम आई राइट? Do we all follow these things? Right? We all generally have this kind of a thali. Now, tell me, is there something wrong? Why I'm asking you कि हमारे थाली में क्या होना चाहिए? Let me give you an example. Eating idli chutney is good or eating idli sambar and chutney is good? You can type in the comment section. क्या लगता है आपको, क्या अच्छी चीज़ है, इडली चटनी खाना या इडली सांबार खाना? और एक एग्जाम्पल देती हूँ, दोनों में मुझे बताइए. पराठा विथ कर्ड और पराठा विथ पिकल एंड चटनी, व्हाट वुड बी योर चॉइस? ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है. So, if you eat idli chutney, you will feel hungry faster than if you eat idli sambar. So, if you eat idli specially dipped in sambar, they will have proteins and fiber too. तो इसके वजह से आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी. जो सटाइटी हम बोलते हैं, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस, वो लंबे समय तक रहेगा. हम पहले यानी कुछ 10 years पहले हम हमेशा इडली विथ सांबार ही खाते थे. आजकल अगर हम देखेंगे इवन रोड साइड हम फटाफट स्नैक्स करते हैं एंड वी जनरली ईट इडली एंड चटनी. सो जस्ट 2 idlis are not sufficient. When you eat idli chutney, you can easily eat 5 or 6 even if they are small. But if you eat equal amount of sambar with it, sambar has vegetables, so it has fiber in it, and sambar has proteins.
सो अलॉन्ग विद दैट इट फिल्स अप योर स्टमक. अब सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया था of paratha. So paratha also, if you eat just paratha and pickle, you can aram se eat 3 or 4 parathas. But if you combine that paratha with a big bowl of curd, you are getting protein. So again the satiety value will be high. तो इसीलिए ध्यान रख के खाना है कि कैसे खाना है. आई एम कमिंग बैक टू आवर प्लेट्स. सो व्हेन आई टोल्ड यू कि हमारी प्लेट्स ऐसे होती हैं, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस अ हेल्दी प्लेट शुड बी, जैसे हमारी प्लेट है, हाफ ऑफ द प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स. सो कैसे होगा ये? इट कुड बी अ बोल ऑफ सैलेड एंड अ बोल ऑफ कुक्ड वेजिटेबल्स. हाफ पोर्शन वेजिटेबल्स में चला गया, द रिमेनिंग हाफ उसको हम वापस 2 भाग में डिवाइड करेंगे. सो 1/4 ऑफ द पोर्शन विल बी प्रोटीन. प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? It could be dal, it could be any non-veg like chicken, fish, mutton, or it could be just a bowl of curd. And जो बाकी का 1/4 portion है, half plate has gone in vegetables, cooked vegetables and salad. 1/4 has gone in proteins like जैसे curd है, दाल है, non-vegetarian food है. And जो बाकी का 1/4 है, that is for your carbs, यानी आपकी रोटी हो गई, राइस हो गया. सो अब आपको समझ में आ रहा है हम कैसे खाते हैं. हमारी आधी प्लेट सीरियल्स होती है यानी कार्ब्स, रोटी चावल, एंड उसके अलावा बाकी प्लेट हम 1/4 डिवाइड करते हैं सब्जी और दाल के लिए. बहुत अक्सर मैंने देखा है कि बच्चा जब खाना खाता है तो माएँ इंसिस्ट करती है सब्जी और दाल नहीं खाएंगे तो चलेगा, बट रोटी आपको फिनिश करनी है. सो ये ध्यान रखना है कि दिस इज द बैलेंस. सो वेजिटेबल्स मोर, देन कम्स प्रोटीन एंड देन इज द कार्ब्स. अब कार्ब्स का सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या ले रहे हो आप कार्ब्स में? जहाँ तक हो सके ट्राई एंड यूज मिलेट्स, होल ग्रेन्स लाइक जवार, बाजरा, नाचनी, मकई, बिकॉज दे हैव मोर ऑफ फाइबर्स एंड अदर vitamins and minerals too. So whenever you next time look at your plate, just ask this 3 questions. From where is the fiber coming from? Fiber is the digestive thing जो आपके गट को एकदम अच्छे से साफ करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, डायबिटीज रेंज में रखता है. सो फाइबर फ्रॉम द प्लेट, स्टैंडर्ड प्लेट और जो गाइडलाइन के हिसाब से है उसमें अगर बोलूँ तो आपको कुछ अमाउंट्स ऑफ मिलेट से मिलेगा, यानी अगर आपकी रोटी नाचनी, जवार, बाजरा, मकई की है, और बहुत सारा आपको मिलेगा वेजिटेबल्स से, द कुक्ड एंड द रॉ वेजिटेबल. नाउ सेकेंड इज वेयर इज योर प्रोटीन कमिंग फ्रॉम, तो वो आपका जो नॉन वेजिटेरियन या दाल या दही है उससे. एंड वेयर इज योर कार्बोहाइड्रेट. सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड नहीं होना चाहिए. रिफाइंड यानी मैदा बेस या बेकरी प्रोडक्ट यानी ब्रेड वगैरह नहीं होना चाहिए. सो जस्ट आस्क, चेक आउट दिस 3 क्वेश्चन. वेयर इज योर फाइबर कमिंग फ्रॉम, वेयर इज योर प्रोटीन कमिंग फ्रॉम, एंड वेयर आर द कार्ब्स कमिंग फ्रॉम. If you take care of this thing, believe me, your plate or थाली will be the healthiest. दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, that is of variety. खाने में हमेशा वैरायटी होनी चाहिए. सो आई हैव सीन पीपल, इफ यू यूज दाल, वो ही 2-3 दाल आप यूज करते हो, जैसे तुअर है, मूंग है, मसूर है या उड़द है. इंडिया हैज मोर देन 50 different types of legumes, pulses and dals. But have we explored them? No. We keep on following whatever is there in our houses, generation to generation. So search for some new pulses, some new legumes. Similarly, in terms of vegetables also, there are so many green leafy vegetables, but we generally stick to pudina, coriander, spinach, palak, suwa, or choli ke patte. So there are lots of green vegetables. So when you go shopping next time, pick up something which you do not usually cook or make. Why am I telling you to include variety? बहुत important चीज़ है. भगवान ने एक ही फूड में वो सारे गुण नहीं दिए हैं या न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए हैं. सो जितना आप वैरायटी रखोगे डाइट में, जितना आप दाल्स को डिफरेंट यूज़ करोगे, जितने वेजिटेबल्स, उतने ही डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे, एंड यू विल बी वेरी हेल्दी फ्रॉम इनसाइड. सो ट्राई एंड इंक्लूड अ लॉट ऑफ वैरायटी. दूसरी चीज़ होती है कलर. कलर में आर्टिफिशियल कलर की नहीं बात कर रही. देर आर ऑल आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डिफरेंट कलर्ड. हैव यू गिवन इट अ थॉट कि व्हाई इज इट सो? The fruits and vegetables get their color from sunlight and the soil,
and you will be surprised to know that their colorful pigments have different names in each of these fruits and vegetables, and they are that pigment which give us antioxidants. सुना है आपने antioxidants के बारे में? एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज जो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है. सो दे जैसे आप बाहर चल रहे हो रोड पे, बहुत पोल्यूशन है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहे हैं, वो हमारे सेल्स को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, मीन्स उसमें से ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी वो सेल वीक हो रही है. सो व्हाट डू एंटीऑक्सीडेंट्स डू? एंटीऑक्सीडेंट्स वो प्रोसेस को वहाँ ही थाम देते हैं. So when you eat lot of colorful या different colored fruits and vegetables, your body gets lot of antioxidants. So just work on making your meals colorful. बहुत difficult नहीं है. कोशिश करके आपकी प्लेट में 2 या 3 कलर होने चाहिए. जैसे अगर आप दही खा रहे हो तो वाइट कलर हो गया. आपने अगर कोई कलरफुल सैलड ले लिया, या चलिए टमाटो एंड कुकुम्बर का ही सैलड ले लिया, तो रेड एंड ग्रीन कलर आ गया. उसके साथ अगर आपने बीट ले लिया तो अगेन अ डिफरेंट कलर आ गया. तो कॉन्शियसली अगर आप काम करेंगे, इफ़ यू इंक्लूड जस्ट 2 or 3 colored fruits, vegetables or food items, then also you will be having a good amount of antioxidants in your diet. Now I come to immunity. So lots and lots of things are there in immunity. काढ़ा है, बहुत सारी tablets है. So let me just tell you one thing. Like Rome was not built in a day, and so is immunity. Immunity एक झटके में आप नहीं बढ़ा सकते. It takes time. उस पर आपको काम करना पड़ता है, and consistently आपको काम करना पड़ता है. And believe me, there are no superfoods. एक फूड खाने से आप इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो मैं आज आपको बताऊंगी. पहले हम खाने के बारे में देखते हैं. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटामिन इज वाइटामिन सी. सो बहुत लोगों के संपर्क में मैं आती हूँ जो अब की इस दौर में वाइटामिन सी के पिल्स ले रहे हैं. सो वाइटामिन सी हेल्प्स इन बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ WBCs, that is white blood cells, जो और अच्छे से फंक्शन करे. सो यू विल गेट वाइटामिन सी. द रिचेस्ट सोर्स इज आंवला. फिर है पेरू, गुआवा में अच्छा वाइटामिन सी होता है. कैप्सिकम, कैबेज, ये सब में अच्छा अमाउंट ऑफ वाइटामिन सी होता है. तो इसका रिक्वायरमेंट ये लेना बहुत ज़रूरी है. मैंगो सीजन अभी गया, मैंगो में भी अच्छा खासा वाइटामिन सी होता है. इवन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में वाइटामिन सी होता है. तो इसका इंटेक बहुत अच्छे से लीजिए. नेक्स्ट आई कम टू इज वाइटामिन डी. Studies have shown that people who are deficient in vitamin C, vitamin D, जिनके vitamin D levels कम होते हैं, they are more susceptible या prone to respiratory disease. So getting your vitamin D levels corrected is very very important. And vitamin D आपको easily मिल सकता है. एकदम non contaminated source is sunlight. In foods if we see there are fortified foods like milk and milk products में है, मशरूम में है, नॉन वेजिटेरियन फूड्स में, कुछ फिशेस में है. सो विटामिन डी का इंटेक भी लेना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वी कम टू इज जिंक. सो जिंक मेक्स अप द प्रोटीन या द जेनेटिक DNA जेनेटिक मटीरियल इन ईच सेल. सो जिंक आपको ईजीली मिलेगा ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस एंड नट्स से. तो ये भी आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वी कम टू इज बीटा कैरोटीन. जैसे मैं इससे पहले आपसे बात कर रही थी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बीटा कैरोटीन इज नथिंग बट येलो ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जैसे आपका पम्पकिन हो गया, मैंगो हो गया, जो भी येलो ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे कैरेट हो गया, ये सब में बीटा कैरोटीन है. एंड स्टडीज हैव शोन दैट इफ द लेवल्स ऑफ बीटा कैरोटीन गो डाउन, देन द एफिशिएंसी ऑफ टी सेल्स एक स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी फाइट करने के सेल्स है, तो उनके लेवल्स लो हो जाते हैं. तो इनका इनटेक बहुत अच्छे से होना चाहिए डाइट में. उसके अलावा गुड फैट्स. नाउ व्हाट आर गुड फैट्स? गुड फैट्स आर द फैट्स which the body cannot make by themselves, इसीलिए आपको बाहर से सप्लाई करना होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ you've heard of omega 3 fatty acids. So omega 3 fatty acids increase the number of
टी सेल्स जो मैंने अभी कहा कि इम्यूनिटी फाइटिंग सेल्स हैं, एंड WBCs, दैट इज वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इवन दे फाइट विथ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस. So this is very important, and also it is being found that good fatty acids are found in immune cells. जो हमारे immunity के cells होते हैं उनमें भी ये अच्छा fatty acids होता है. So now from where will you get this good fats? The ones who eat non-vegetarian, so fishes like tuna, mackerel, salmon, they have good amount of omega-3 fatty acids. And for vegetarians, almonds, walnuts, flax seeds, all this will give you omega-3 fatty acids. Then we come to very important is proteins. Proteins, a lot has been spoken about proteins, and each of us are aware that protein does a lot of wear and tear in our body. Muscles बनाने के लिए हमें proteins चाहिए, वहाँ हमें proteins को हम associate करते हैं. So now in context of immunity, proteins are definitely important because they are required for formation of immunoglobulins. Immunoglobulins क्या है? They are type of antibodies which fight infection. Apart from that, each and every process in our body, each and every hormone, enzyme in our body is made up of proteins. So proteins आपकी diet में बहुत अच्छे से होना चाहिए. There are 2-3 things which you need to remember about protein. One is digestibility. If you are having pulses, legumes, आप उसे अच्छे से पानी में सोक करके रखिए and then boil them well. उसे थोड़ा भी कच्चा नहीं खाना है, मतलब अच्छे से पका के खाइए, अदरवाइज इट विल अफेक्ट योर डाइजेशन. आपको गैस एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. उसके अलावा फॉर वेजिटेरियंस स्पेशली, इफ़ यू ऑल हैव हर्ड कि नॉन वेजिटेरियन फूड में अच्छा प्रोटीन होता है, अच्छा क्वालिटी का. So similarly for vegetarians, if you also want to have similar kind of protein comparable to good proteins called in non-vegetarian food like eggs, we give 100 marks because egg में जितना प्रोटीन है वो पूरा आपके शरीर को लगता है, जिसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं. तो वेजिटेरियंस में जो है ऐसे नहीं होता, बट आप इसे कैसे पॉसिबल कर सकते हो? व्हेन यू ईट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस लाइक राइस एंड दाल. सो समथिंग लाइक खिचड़ी, इडली डोसा, दाल ढोकली, जहाँ पे भी राइस और एक पल्स, ये दोनों ग्रुप का कॉम्बिनेशन आ रहा है. Because rice lacks in one type of protein and dal lacks in another. So when you combine, you get a best quality protein as comparable to that of egg protein. So कोशिश कीजिए आप ऐसे खाएं, ऐसे नहीं कि दाल ऐसे ही खा ली या रोटी खा ली, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दैट कंप्लीट प्रोटीन. उसके अलावा दिस वॉज अबाउट द डाइट थिंग. There are other factors also which play a lot of important role. So I'll come to water. पानी बहुत अच्छे से पीना है. Water helps to carry oxygen to the cells and also acts as a detoxifying agent. सारे toxins बॉडी में से निकाल देता है, तो नेगेटिव इफेक्ट आपके बॉडी पे नहीं होता, तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहती है. अनदर फैक्टर इज स्लीप. इस दौरान मुझे बहुत से कॉल्स आ रहे हैं पेरेंट्स के, स्पेशली टीनेजर्स में. बच्चे रात को देर तक जागते हैं एंड देन सुबह सोते हैं, and then they get up also by afternoon. So you are trying to disturb the biological clock which is known as circadian rhythm. हमारी बॉडी में एक इनबिल्ट क्लॉक होता है जिससे हमें पता चलता है कि अब रात है, हमें सोना है. बट अगर आप लंबे समय तक इस क्लॉक के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो देन आपका इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाएगा. बिकॉज इफ़ यू डू नॉट स्लीप वेल, जो टी सेल्स के बारे में मैंने पहले बात की थी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी काम करने की क्षमता कम हो सकती है. सो स्लीपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. राइट टाइम पे सोना एंड राइट नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीपिंग. मीन्स ऐसे नहीं है कि आप 3-4 घंटे ही सो, प्रॉपर 6 से 7 घंटा नींद होनी ज़रूरी है. So very important request is even for adults and teens who are watching, please sleep on time. Do not disturb the biological clock if you want to have a great immunity. Exercise.
Exercise is another important factor. I understand when in this situation you're not allowed to go out, a simple few yoga poses or just walk or on the spot jogging or marching will also help you, because exercise is acts like an anti-inflammatory, so it definitely will boost your immune system. Stress. Now, stress, studies have shown that stress suppresses your immune system. It releases cortisol hormone, which is known to suppress immune system. So, it is the happy hormone dopamine, which keeps our immune system healthy and hey. So yes, खुश रहना ज़रूरी है. स्ट्रेस में है तो टेक हेल्प, but do not stay in stress for a longer period of time. I understand in this period, for me it is very easy to tell you all कि stress नहीं लेना है, but yes, कुछ हद तक अगर वो स्ट्रेस आपको अफेक्ट कर रहा है, देन प्लीज़ टेक प्रोफेशनल हेल्प. Yes, overweight. During the earlier months of COVID, lot of people were telling yes, overweight है तो risk ज़्यादा है. क्यों ऐसे? So if you are overweight or quite obese, you are prone to a lot of infection, you are prone to a lot of metabolic disorders like diabetes, BP. So this itself reduces your immunity. So yes, this is a good time to lose weight, so try and reduce your weight. Very important is gut, यानी हमारे पेट का फंक्शनिंग. योर गट बैक्टीरिया houses 70% of immune cells. So it is very important to keep your gut healthy. If your gut is sick, so are you. एग्री करते हैं, अगर हमारा पेट खराब है तो हमें भी अच्छा नहीं महसूस होता, राइट? सो टेकिंग केयर ऑफ गट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे गट में क्या हेल्प करेगा? सो देर इज समथिंग नोन एज प्रोबायोटिक्स, जो आपको फर्मेंटेड फूड्स में मिलेगा, जैसे इडली है, डोसा है, या अ बोल ऑफ कर्ड. तो ये अगर आप ऑन रेगुलर बेसिस आप डाइट में इंक्लूड करेंगे तो यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ गट. सो प्लीज़ इंक्लूड दिस फूड्स. ओके, उसके अलावा रिड्यूस इनटेक ऑफ inflammatory food या junk food. So a lot of people are cooking, there are food challenges going on. So if you are taking काढ़ा every day, exercise कर रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हो, बट देन आप रॉन्ग फूड्स यानी जंक फूड घर पे ही बना के भी खा रहे हो, लेट मी टेल यू दैट सिंगल फैक्टर इज इनफ टू सप्रेस योर इम्यून सिस्टम. अब आप पूछेंगे क्यों ऐसे? The junk food are loaded with lot of salt, lot of sugar and lot of fats. So जो भी आप अच्छा खा रहे हो, they are working just to remove that waste or that kachra out of your body. So whatever healthy you are eating is just going in draining that off. And if you're not eating, that food is giving you energy. So the choice is yours कि आपको क्या करना है. एंड येस, हर्ब्स एंड स्पाइसेस. इंडिया इज़, आई वुड से इंडिया के पास इसका बहुत सारा खजाना है. एंड वी ऑल नो दैट हल्दी में क्यूरक्यूमिन होता है जो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है. अपार्ट फ्रॉम दैट सिनेमन, क्लोव, ब्लैक पेपर, ऑल आर हर्ब्स एंड स्पाइसेस. लाइक मिंट है, तुलसी है, नीम के पत्ते है, ऑल दिस आर वेरी गुड. So you can combine 2 or 3 of it and you can have them like an infused water. Infused water is very simple. Take a liter of water, put few leaves, put herbs, let it get infused for an hour or two, and then you finish off that water. Or you can make kada as everyone is doing. So it could be of just combine 2 or 3 herbs and spices, and that would be enough to boost your immunity. Maintaining a balance is very very important. Please do not work on overdoing any one thing. ये अच्छा है, काढ़ा अच्छा है तो मैं दिन में 10 बार 5 बार काढ़ा ले रही हूँ, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए. I have got few cases in this 3 months wherein because if your body's heat is high, at times it may not suit you. If you already have a background of ulcers or piles, it can aggravate. So लिमिट में लीजिए. आप किसी को कंसल्ट करके भी ले सकते हैं. तो कोई चीज़ अच्छी है तो उसे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आई वुड जस्ट गिव यू फ्यू टिप्स ऑन फूड सेफ्टी.
सो फूड सेफ्टी में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हैंडल फूड विथ क्लीन हैंड्स. हमेशा हाथ धो के, साबुन से धो के फूड को लगाइए. Another is always keep cooked and raw food separate. This is very important, especially when you are handling non-vegetarian food. उसके अलावा cook food well means कच्चा नहीं रखना है हमें खाना, अच्छे से उसे पकाना है. एंड उस लास्ट बट नॉट लीस्ट इज store food at right temperature. So if you've left a cooked सब्जी outside 4-5 घंटे, उसके बाद आप उसे फेंक ही दीजिए, फ्रिज में नहीं रखना है. एंड इफ़ यू केप्ट समथिंग इन फ्रिज, उसे बराबर बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे ला के गर्म करके फिर ही खाना है. सो दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स, बट येस, इफ टेकन केयर ऑफ, they will again help your system. So thank you so much for joining me, and I welcome your queries. And I also thank Religare Health Insurance and Wellsure India for giving me this opportunity today to speak on such an important topic. So yes, you all can please put if you have any queries, and I'll be happy to take them. So if you all do not have any queries at the moment, I can come back to this thread and reply at the later time. But if you have now, I'll be very happy. I hope this session will be helpful to you all, and you will work for bettering your immunity. Especially, just take care of reducing the junk food intake. Do not participate in food challenges and wrong foods. Please मत बनाइए. Very important. जो विटामिन्स पे मैंने बोला था ध्यान देने, उनका ध्यान दीजिए. विटामिन सी है जो आपको सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलेगा. विटामिन डी सनलाइट अभी नहीं है, तो अगर आपके लेवल्स कम हैं तो प्लीज़ टेक सप्लीमेंट्स. जिंक कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने से, सीड्स है जैसे पम्पकिन, वाटरमेलन, उससे मिलेगा. बीटा कैरोटीन पम्पकिन बहुत इजीली अवेलेबल है, या इवन टमाटो वो भी चलेगा, उसमें लाइकोपीन है, उससे भी मिल सकता है. सो ये गुड फैट्स इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 3, जैसे मैंने बोला अगेन ड्राई फ्रूट्स. सो बस ध्यान रखिए कि कुछ पल्सेस खा रहे हैं आप, कुछ नट्स खा रहे हैं, कुछ सीड्स खा रहे हैं, एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, एंड यू आर सॉर्टेड. सोच के कि मुझे विटामिन सी की दवा लेनी है, मुझे इसकी दवा लेनी है, इतना उसे टीडियस प्रोसेस मत बनाइए. थैंक यू सनी, and thank you Meet. I'm glad that you liked my session. So please put down your queries, otherwise I'll feel I was very clear. So I'll just wait for next 2 minutes. If you all do not have any queries, I'm going to just end this session. Okay, so I have got a query. VL Narayan, the session is quite useful in this crisis period. Okay, thank you so much, sir. Yes, and exercise also, as I spoke, just be little active at home. If you don't feel like exercising, just get up. Even if you're sitting and working, work from home चल रहा है, every 15-20 minutes अपनी जगह से उठ के पूरे घर में एक राउंड मार के आइए and then sit. Being active will also enhance the functioning of your immune system and your metabolism too. Thank you, Sheetal. So thank you all for joining my session and listening so patiently. And I'm ending this session. Thank you so much. Thank you, Nari Varya Upwan. Thank you.